السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن۔ عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ حکومت شفاف الیکشن یقینی بنائے گی۔ کسی سیاسی جماعت پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ نگراں حکومت نہیں چاہتی کہ کوئی بھی جماعت انتخابی عمل سے باہر ہو۔ عوام جس کو اپنا مینڈیٹ دیں گے وہ حکومت بنائے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو۔ پاک فوج کے 2 سابق افسران کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل۔ فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کا الزام ثابت۔ عادل فاروق راجہ کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ حیدر رضا مہدی کو بھی 12 سال قید بامشقت کی سزا۔ دونوں ریٹائرڈ افسران کے رینک بھی ضبط۔ عادل فاروق راجہ اور حیدر رضا مہدی کو قانون کے مطابق مجرم قرار دیا گیا۔ عدالت نے اپنے اختیار کے مطابق مناسب قانونی عمل کے ذریعے فیصلہ سنایا۔ سزا میں پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی خلاف ورزی سمیت دیگر دفعات شامل۔ مجرموں کے بینک اکاؤنٹ منجمد، پاسپورٹ اور قومی شناختی کارڈ منسوخ۔ نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ISPR۔ غزہ میں 4 روزہ عارضی جنگ بندی کا دوسرا روز۔ 14 اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے 42 فلسطینی قیدیوں کی رہائی متوقع۔ گزشتہ روز اسرائیل نے 39 فلسطینی قیدیوں جبکہ حماس نے 13 اسرائیلیوں سمیت 24 یرغمالیوں کو رہا کیا۔ عارضی جنگ بندی کے پہلے روز خوراک، پانی، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء لے کر 137 ٹرک غزہ پہنچے۔ سمجھوتے کے تحت مجموعی طور پر 50 اسرائیلی یرغمالی اور 150 فلسطینی قیدی رہا ہوں گے۔ بھارت کو بھاری اکثریت سے شکست۔ پاکستان آئندہ 2 سال کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کا وائس چیئرپرسن منتخب ہو گیا۔ پیرس میں عالمی ادارے کے ایگزیکٹو بورڈ کے 218ویں سیشن کے دوران ووٹنگ میں پاکستان نے بھارت کو 18 کے مقابلے میں 38 ووٹوں سے شکست دی۔ مسلم لیگ نون سازش کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ ملک کو 4 سال تک معاشی، معاشرتی اور اقتصادی طور پر نقصان پہنچایا گیا۔ اس بھاری نقصان کی تلافی کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ملک کی سر نو تعمیر کے لیے اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ عوام کے ریلیف کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کا سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ پیپلز پارٹی کے 56ویں یوم تاسیس کا جلسہ کوئٹہ میں ہوگا۔ یوم تاسیس سے الیکشن مہم کا آغاز ہوگا۔ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور شریک چیئرمین آصف علی زرداری بلوچستان میں پارٹی کی انتخابی حکمت عملی واضح کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نواب ثناء اللہ زہری اور ریٹائرڈ جنرل عبدالقادر بلوچ کی کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو۔ استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین سے بلوچستان کے ترین قبائل کے عمائدین کی ملاقات۔ استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ ملک سعد اللہ جان ترین IPP بلوچستان کے صدر اور ریحانہ حبیب ویمن ونگ بلوچستان کی صدر نامزد۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا محفوظ اور باعزت انخلاء۔ گزشتہ روز 1925 غیر قانونی افغان باشندوں پر مشتمل مزید 516 خاندان اپنے ملک لوٹ گئے۔ افغانستان واپس جانے والے غیر قانونی پناہ گزینوں کی مجموعی تعداد 2,51,000 سے تجاوز کر گئی۔ طالبان دور میں صحافیوں اور میڈیا کارکنوں پر افغان سرزمین تنگ۔ خواتین پر صحافت کے دروازے مکمل بند۔ صحافیوں کو جسمانی تشدد، گرفتاریوں اور دھمکیوں کا سامنا۔ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں افغانستان کی تنزلی 122ویں سے 156 نمبر پر آ گیا۔ سوشل میڈیا پر بھی کڑی پابندیاں عائد۔ کشمیری خواتین بھارتی ریاستی دہشت گردی کا بدترین شکار۔ 34 سال میں 2,352 خواتین شہید، 11,259 کی بے حرمتی۔ آسیہ اندرابی سمیت 2 درجن سے زائد خواتین گزشتہ 5 سال سے بھارتی جیلوں میں نظر بند۔ بھارتی فوج کشمیری خواتین کی بے حرمتی کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ حریت قیادت کی شدید مذمت۔
आम इंतखाबात से कबल मोदी हुकूमत और गोदी मीडिया का गठजोड़, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और मनगढ़ मुकाबलों की आड़ में हलाक होने वाले फौजियों की मौत को सियासी हथियार बना लिया। इलेक्शन मुहिम में भारतीय फौजियों की लाशें एक अहम मार्केटिंग टूल बन चुकी हैं। भारतीय फौजियों की लाशों पर मातम करके बीजेपी हुकूमत सियासी फायदा उठाने लगी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब। से जायद की शानदार रिवायात का अमीन, पाकिस्तान टेलीविजन की 59वीं सालगिरह, हर दौर में कौम का तर्जमान। पीटीवी ने कौमी तशख्खुस और बयानिए को उजागर किया। रियासती इदारे ने नामवर अदाकार, गुलकार, फनकार और मुख्तलिफ शोबों में माहिरीन पैदा किए। बारिश बरसाने वाला निजाम मुल्क में दाखिल, गवादर और मकरान में बारिश और यालाबारी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और बालाई इलाकों में सर्द। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में स्मोग और धुंध छाए रहने का इम्कान। दौरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम के ट्रेनिंग कैंप का तीसरा रोज। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 2 रोजा प्रैक्टिस मैच। पहले दिन पाकिस्तानी बैटर्स के 2 विकेटों के नुकसान पर 298 रन। शान मसूद 101 और बाबर आजम 71 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हुए। कौमी टीम 30 नवंबर को लाहौर से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी। दौरे न्यूजीलैंड के लिए कौमी विमेंस क्रिकेट टीम क्राइस्टचर्च पहुंच गई। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 और 3 एक रोजा मैचेस खेले जाएंगे। वनडे सीरीज आईसीसी की विमेंस चैंपियनशिप का हिस्सा है। नाजरीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन तैयारियां कर रहा है। निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए वजीर आजम का कहना था कि अवाम जिसको अपना मैंडेट देंगे वो हुकूमत बनाएगा। तफसील मोहम्मद मजहर अब्बास से। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हुकूमत शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के कुछ मसाइल हैं, मगर तवक्को है कि ये इंतखाबी अमल में रुकावट नहीं बनेंगे। वजीर आजम ने कहा कि निगरान हुकूमत नहीं चाहती कि कोई भी सियासी जमात इंतखाबी अमल से बाहर हो। जो हुकूमत वक्त है उसका रवैया दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये हमदर्दी अपने वोटर से हासिल करने के लिए भी कुछ लोग कहते हैं। ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि केयरटेकर गवर्नमेंट कोई इस किस्म का फेवर या ऐसा कोई काम कर रही है जो किसी एक पार्टी को डिस्क्रिमिनेट किया जाए नेगेटिवली। किसी ने किसी जमात को इंक्लूडिंग पीटीआई ना पॉलिटिकल रैली से रोका हुआ है, ना पॉलिटिकल पोजीशन लेने से रोका हुआ है। निगरान वजीर आजम ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बयानबाजी से निगरान हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल आज़ादी है। वजीर आजम का कहना था कि निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कमीशन को मुआवनत फराहम करना है, जबकि इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम शफाफ इंतखाबात कराना है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस सिलसिले में अपनी तैयारियाँ कर रहा है और जहाँ जहाँ हमारे असिस्ट करने का जो रोल है वो हम अदा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सिक्योर ट्रांसपेरेंट अंदाज में ये ज़िम्मेदारी जो है इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ। संजीदा अंदाज में जो है ना टेररिज्म जो है उसकी एक सर्च आ रही है, खुसूसी तौर पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन मैं कोई उसको बुनियाद बनाकर उसको किसी सियासी अमल से जोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि विफाकी या सूबाई निगरान हुकूमतों की जानिब से किसी सियासी जमात पर कोई कदगन नहीं है। सियासी जमातों से मुताल्लिक जो कानूनी कदगन और मामलात हैं इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी बढ़ रही है। कुवैत और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के अरबों डॉलर्स के मंसूबे शुरू हो रहे हैं। निगरान हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए जो इकदामात उठाए हैं इसके दूरस नताइज मुरतब होंगे। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
पाक फौज ने बगावत पर उकसाने के जुर्म में 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजा सुना दी और दोनों के रैंक्स जब्त कर लिए हैं। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक भगोड़े आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को बिलतरतीब 14 और 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। तफसील इमरान मंसूर खान से। ISPR के मुताबिक मुल्ज़मान के खिलाफ फ़राइज़ की अंजाम दही में गफलत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की दफ़ात की खिलाफ वर्जी, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद के खिलाफ मनफी सरगर्मियों की दफ़ात भी शामिल की गई हैं। मजाज अदालत ने दोनों मुल्ज़मान को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजाएं सुनाई। मजाज अदालत ने कानूनी अमल के जरिए दोनों रिटायर्ड अफसरान को 7 और 9 अक्टूबर 2023 को मुजरिम करार दिया। मुलजिम आदिल राजा के खिलाफ 7 मई 2023 को थाना जनूबी लाहौर कैंट में मुकदमा दर्ज किया गया और 18 जून 2023 को बाकायदा अदालती कार्रवाई शुरू की गई। आदिल राजा के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान अदालत की जानिब से पहला समन 19 जून 2023 जबकि दूसरे समन की 22 अगस्त 2023 को सिफारती जराये से तामील कराई गई। मुलजिम को अदालत पेश होने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया। अदालत से मुसलसल गैर हाजिरी पर आदिल राजा को 7 अक्टूबर 2023 को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। दूसरे मुलजिम हैदर मेहदी के खिलाफ 7 मई 2023 को थाना जनूबी लाहौर कैंट में मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम को पहला समन 26 जून 2023 जबकि तलबी का दूसरा नोटिस 28 अगस्त 2023 को भिजवाया गया था। मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने हैदर मेहदी को पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 131 के तहत 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। दोनों मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक वकील की खिदमात भी फराहम की गई। मुल्ज़िमान पर पहले ही पाकिस्तानी कवानीन के जरिए हत्या की इज्जत और रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने के जुर्म में फर्द जुर्म आयद की गई थी। दोनों रिटायर्ड अफसरान की मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त कर ली गई हैं जबकि बैंक अकाउंट्स, मुंजमद, पासपोर्ट्स और शनाख्ती कार्ड भी मनसूख कर दिए गए हैं। दोनों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी डाल दिए गए हैं। आज गजा में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का दूसरा रोज़ है। इसराइली हुक्काम ने कहा है कि कतर की सालिसी में होने वाले समझौते के तहत आज इसराइल से 42 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा जबकि हमास की कैद में मौजूद 14 यरगमाली भी रिहा किए जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ जंगबंदी के पहले रोज़ हमास ने 24 यरगमाली को रिहा किया था जिनमें 13 इसराइली, 10 थाई और 1 फिलिपाइनी बाशिंदा शामिल थे जबकि इसराइल ने 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। हमास और इसराइल 4 रोज़ा जंगबंदी के दौरान मजमूई तौर पर 50 इसराइली यरगमालियों और इसराइली जेलों में कैद 150 कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल ने कहा है कि अगर मजीद 10 यरगमालियों को रिहा किया जाता है तो जंगबंदी में 1 दिन की तौसी मुमकिन है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने उम्मीद जाहिर की थी कि जंगबंदी की मुद्दत में इजाफा हो जाएगा। एक बड़ा काफिला इंसानी इमदाद लेकर गजा दाखिल हुआ है जिसमें ईंधन, खुराक और तिब्बी अशिया शामिल हैं जबकि गजा में इमदादी अशिया की तकसीम शुरू कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ शुरू होने वाली जंगबंदी के बाद कई फ़लस्तीनी बाशिंदे इसराइली कैद से रिहा होने के बाद अपने घरों को पहुंचे तो उनके घरों में जश्न का समा देखने में आ रहा था। फायरबंदी का फ़ायदा उठाते हुए नकल मकानी करने वाले अफराद अपने घरों को वापस आए तो उन्हें वहाँ तबाही के सिवा कुछ नहीं मिला। गजा में आर्जी तौर पर लड़ाई बंद हो गई है लेकिन लोगों को खदशा है कि 4 रोज़ मुद्दत खत्म होने के बाद दोबारा लड़ाई शुरू हो जाएगी क्योंकि हमास तमाम यरगमालियों को रिहा नहीं करेगा जबकि इसराइल कह चुका है कि वो फायरबंदी की मुद्दत खत्म होने के बाद दोबारा हमले शुरू कर देगा। नाज़रीन, बलूचिस्तान में फ़लस्तीनी मुसलमानों से यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। बुलान और पशीन में JUI की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा हुआ और रैली निकाली गई। पार्टी वर्कर्स, सपोर्टर्स और आम शहरी बड़ी तादाद में मजम्मती बैनर्स और प्ले कार्ड्स लिए शहर के मरकजी चौक पर जमा हुए। मुकर्रिरीन का कहना था कि जिस तरह इसराइली तैयारों ने अस्पतालों, एम्बुलेंसेस, खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया उसकी मिसाल तारीख़ आलम में नहीं मिलती। कराची के इलाके क़य्यूमाबाद में जमात इस्लामी कराची की ज़ेर एहतमाम गज़ा बाज़ार का इनेकाद किया गया। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि हमास ने पूरे इज़्ज़त व एहतराम से जंगबंदी मुआहिदा पूरा किया है। बैनुल अक़वामी बिरादरी को भी चाहिए कि वो फ़लस्तीन के साथ किए गए वादे पूरे करे। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि आज के इस बाजार से होने वाले मुनाफे का हिस्सा फ़लस्तीन फ़ंड में जाएगा। हमें चाहिए कि हम इसराइली मसनूआत की जगह पाकिस्तानी मसनूआत को तरजीह दें। नाज़रीन, पाकिस्तान भारत को भारी अक्सरियत से शिकस्त देकर आइंदा 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वाइस चेयरपर्सन मंतखब हो गया। पेरिस में आलमी इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 218वें सेशन के दौरान होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान ने भारत को 18 के मुकाबले में 38 वोटों से शिकस्त दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक बयान में यूनेस्को के रुकन मुबालिग की जानिब से ज़बरदस्त हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियाँ एहसन अंदाज और बाहमी एहतराम के जज्बे के साथ अदा करेगा।
معاشی صورتحال میں بہتری سے عوام کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور مایوسی کے سطح میں کمی آئی ہے۔ نجی سروے کے مطابق ملک کی مجموعی معاشی صورتحال پر عوام نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور مایوسی کی سطح میں بھی نمایاں کمی آئی ہے۔ سروے کے مطابق پاکستانیوں نے ملکی صورتحال کو اطمینان بخش قرار دیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو اس حال میں پہنچانے والا خود انہیں آیا تھا بلکہ اسے لایا گیا تھا۔ گزشتہ چند سال میں ملک کو پہنچنے والے بھاری نقصان کی تلافی کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عاصم نذیر بھٹی۔ پاکستان واپس آنے کے بعد محمد نواز شریف پہلی مرتبہ ورکرز سے براہ راست ملنے اور دل کی باتیں کرنے سیالکوٹ میں خواجہ محمد آصف کی رہائش گاہ پہنچے تو کارکنوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ کارکنوں نے اپنے محبوب قائد اور پارٹی کے حق میں دل کھول کر نعرے بازی کی۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز، اسحاق ڈار، پرویز رشید اور مریم اورنگزیب سمیت دیگر پارٹی رہنما بھی نواز شریف کے ہمراہ تھے۔ ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے محمد نواز شریف نے کہا کہ 2017 میں جب ملک ہر شعبے میں ترقی کر رہا تھا تو ہماری حکومت کے خلاف سازش کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی۔ ایسے بندے کو لے آتے ہیں جس کو سوائے گالی کے اور کچھ کرنا ہی نہیں آتا، جب بھی بولتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ اپنے ملک کو ہم اس طرح کے لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتے جو ہمارے معاشرے کو بگاڑ دیں، ہماری قدروں کو بگاڑ دیں، ہمارے کلچر کو برباد کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا پیارا پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں آنے کی بجائے 2017 میں پھر پٹری سے اتر گیا۔ ملک کتنا خوشحال تھا، روپیہ آپ کا مضبوط تھا، پاکستان میں مہنگائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آٹے کا ریٹ آپ کو پتا ہے، روٹی 4 روپے میں ملتی آپ کو معلوم ہے۔ تیزی کے ساتھ سی پیک لگ رہا تھا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا ہم نے، دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا ہم نے، اور یہاں بے روزگاری کا روز بروز خاتمہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ محمد آصف نے کہا کہ میاں نواز شریف وفا کا استعارہ ہے اور اسی طرح ان کے کارکنوں نے بھی پارٹی کے ساتھ وفا کی۔ نواز شریف کو مٹانے والے آج خود مٹ گئے۔ عاصم نذیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، سیالکوٹ۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی پریشان ہے۔ پی ٹی آئی کو اقتدار میں لا کر پاکستان کی ترقی کو روکا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی اثر نو تعمیر کے لیے اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ مسلم لیگ نون سازش کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی، عوام کے ریلیف کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ مزید تفصیل فہد عزیز سے جانیے۔ سیالکوٹ میں چیمبر آف کامرس کے وفد سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے کہا کہ پی ٹی آئی کو اقتدار میں لا کر پاکستان کی ترقی کو روکا گیا۔ قوم کو سوچنا چاہیے ان سب چیزوں پر۔ ایک ایسا بندہ ہمیں تو فارغ کر دیا، ایک ایسا بندہ لا کے بٹھا دیا جس نے قوم کا بٹھا بٹھا دیا، انڈسٹری کا بٹھا بٹھا دیا، اکانومی کا بٹھا بٹھا دیا، فارن ریلیشنز کا بٹھا بٹھا دیا، ہمارے اقتصادیات کا بٹھا بٹھا دیا، معاشرت کا بٹھا بٹھا دیا، معاشی حالات کا بٹھا بٹھا دیا، ہمارے جو ہے وہ کلچر کا بٹھا بٹھا دیا۔ محمد نواز شریف نے کہا کہ اپنے دور میں ملک سے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا اور سی پیک جیسا منصوبہ پاکستان میں لائے۔ آج 50,000 روپے مہینہ کمانے والے بندے کا گزر ہو سکتا ہے، نہیں ہوتا۔ کرنوں کے باوجود ہم نے کام کیے اور ہم نے اپنے ہدف پورے کیے۔ 2017 تک جو گورنمنٹ تھی ایک بہترین گورنمنٹ چل رہی تھی، ایک ہنستا بستا پاکستان تھا۔ سی پیک میں جس میں ہم نے بہت سارے پروجیکٹس بنائے ہیں کہ جی یہ مسٹر پرائم منسٹر مجھے کہنے لگے دس از اے گفٹ فرام چائنا ٹو یو مسٹر پرائم منسٹر، ٹو یو۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے کہا کہ پاکستان ایٹمی حکومت ہمارے دور میں بنا اور اب کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گزشتہ دور میں ملک کی ترقی کو نہ روکا جاتا تو آج پاکستان کی برآمدات 300 ارب ڈالر سے زائد ہوتی۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، فہد جاوید کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو بتائیں گے استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین سے بلوچستان کے ترین قبائل کے رہنماؤں اور رمائدین نے ملاقات کی اور استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ جہانگیر خان ترین نے رہنماؤں کا خیر مقدم کیا۔ جہانگیر ترین نے ملک سعد اللہ جان ترین کو استحکام پاکستان پارٹی بلوچستان کا صدر اور ریحانہ حبیب بلوچ کو آئی پی پی ویمن ونگ بلوچستان کی صدر نامزد کیا۔
पीपल्स पार्टी के 56वें यौम तासीस के सिलसिले में कोयटा के अयूब स्टेडियम में जलसा होगा। फाउंडेशन डे प्रोग्राम से बलूचिस्तान में बाकायदा इलेक्शन मुहिम का आगाज करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी और जनरल अब्दुल कादिर बलोच का कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी अयूब स्टेडियम में होने वाले जलसे में बलूचिस्तान में पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली वाज़ेह करेंगे। बलूचिस्तान की मारूफ समाजी शख्सियत चीफ ऑफ मुत्तहिदा कबाइल फेडरेशन मलिक अमानुल्लाह काकड़ ने ANP में गैर मशरूत शमूलियत का ऐलान किया है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमीर हैदर हूथी का कहना था कि उनकी जमात इंतखाबात भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी। अवामी नेशनल पार्टी सियासी जद्दोजहद से दस्तबरदार नहीं हुई। हमारी सियासत का मकसद आवाम की खिदमत है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि MQM पाकिस्तान एक एक टाउन में जाकर अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रख रही है। कोरंगी में जलसे के इंतजामात का जायजा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ये जलसा सियासी क़ुव्वत दिखाने के लिए नहीं बल्कि इस शहर को हक दिलवाने के लिए है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा पाकिस्तान जहां सबको आज़ादी से आइन और कानून के तहत बराबरी के हुकूक हासिल हों उसकी जिद्दोजहद कर रहे हैं। हम एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखते हैं जहां हर पाकिस्तानी को इंसाफ मुहैया हो। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि इलेक्शन का बिगल बच चुका है। इंतखाबात के लिए इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी मैदान में आ चुकी है। कामोखी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि अवाम इंतखाबात में इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी को चुनेंगे। चेयरमैन PTI ने कौमी मफाद को मजरूह किया और अवामी तवक्कुआत को खाक में मिलाया। उन्होंने कहा कि कल उनकी जमात कामोखी में अपनी सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर इंजीनियर अमीन मकाम ने कहा है कि सूबे के अवाम ने तहरीक इंसाफ को आजमाया लेकिन उसने अवाम को रिलीफ देने की बजाय महंगाई का तूफान बर्पा किया। चारसद्दा में शमूलियती जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा मुल्क में माशी इस्तेहकाम है। नवाज शरीफ के बगैर माशी इस्तेहकाम लाना नामुमकिन है। जलसे से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने कहा कि पाकिस्तान की महरूमियाँ तब खत्म होंगी जब नवाज शरीफ अवाम के वोटों से वजीर आजम बनेंगे। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह और नाजायज़ ताल्लुकात का केस दायर करते हुए दरख्वास्त में बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI को सख्त सजा की इस्तदा की है। खावर मानिका ने इस्लामाबाद के सिविल जज की अदालत में पेश होकर शिकायत दर्ज करा दी। खावर मानिका ने अदालत में बयान कलमबंद कराते हुए कहा कि बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI के दरमियान शादी से पहले नाजायज़ ताल्लुकात थे। तस्दीक शुदा नाजायज़ ताल्लुकात के बिना पर बुशरा बीबी को तलाक देने पर मजबूर हुआ। अदालत ने गवाहों को नोटिस जारी करते हुए समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने जिस फराख्त तली से अफगान बाशिंदों को अपने मुल्क में पनाह देने के साथ रोजगार के सारे मौके मुहैया किए, इस अमर को आलमी सतह पर सराहा गया। 31 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज्जत इनखला यकीनी बनाया गया है। चमन और तुर्कम बॉर्डर पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं। अब तक कुल 2,51,000 अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। नाज़रीन, अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत फाल होने के बाद अफगान सरजमीन सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनान पर तंग कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शोबा सहाफ़त अफगानिस्तान में एक चैलेंज बन चुका है जिसमें सहाफ़ियों को जिस्मानी तशद्दुद, गिरफ्तारियों और धमकियों का सामना करना पड़ता है। अप्रैल 2023 के बाद से ख़वातीन सहाफ़ियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। आलमी इदारों को चाहिए कि अफगानिस्तान में ज़राए इब्लाग के इस्तेहसाल का नोटिस देते हुए अमली इक़दामात करें। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने गुज़श्ता 34 साल के दौरान अपनी रियासती दहशतगर्दी की मुसलसल कार्रवाइयों में 96,275 शहरियों को शहीद किया, जिनमें 2,352 खवातीन भी शामिल है। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर कश्मीर मीडिया सर्विस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फौजियों ने इस अरसे के दौरान 11,259 खवातीन की बेहुरमती की। रिपोर्ट में कहा गया कि कश्मीरी खवातीन तनाज़े कश्मीर से सबसे ज़्यादा मुतासर हुई हैं और 1989 से अब तक 22,900 से ज़्यादा खवातीन बेवा हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फौजी हक़ खुदरादियत के हुसूल के लिए कश्मीरियों की नाजायज़ जिद्दोजहद को दबाने के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर में खवातीन की बेहुरमती को एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुर्रियत रहनुमा आसिया इंदराबी समेत 2 दर्जन से ज़ायद खवातीन गुज़िश्ता 5 साल से नई दिल्ली की बदनाम ज़मानत तिहाड़ जेल और दीगर जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हैं।
हुर्रियत रहनुमा ख्वाजा फिरदौस, सैयद बशीर इंदराबी, यास्मीन राजा, ज़मरुद्दा हबीब और दीगर ने अपने बयानात में कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में ख़वातीन भारतीय रियासती दहशतगर्दी का बदतरीन शिकार हैं। ताहम उन्होंने कहा कि भारतीय मुजालिम कश्मीरी ख़वातीन को खौफजदा करने में नाकाम रहे और वो तहरीक आज़ादी में अहम किरदार अदा कर रही हैं। नई दिल्ली के ज़ेर कंट्रोल रियासती तहकीकाती एजेंसी ने गैर कानूनी तौर पर नजरबंद सीनियर हुर्रियत रहनुमा और मारूफ आलमदीन मौलाना सरजान बरकाती की अहलिया को जिला शुपियां में गिरफ्तार कर लिया। SIA के अहलकारों ने मौलाना सरजान बरकाती की अहलिया को उनके घर पर छापा मारकर एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया। उन्हें तहरीक आज़ादी के साथ वाबस्तगी पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय पुलिस ने जिला बडगाम में 3 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नौजवानों की गैर कानूनी गिरफ्तारी का जवाब पेश करने के लिए उन्हें एक मुजाहिद तंजीम के कारकुन करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बांदीपुरा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में हालात मामूल के मुताबिक होने के दावों को मुस्तरद करते हुए उन्हें मज़क्क़ाखेज़ करार दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार हासिल करने के लिए इंतहा पसंदाना हिकमत अमली में मसरूफ़ है। मोदी के ज़रिए असर मीडिया ने पहले ही पाकिस्तान मुखालिफ रिपोर्टिंग में इजाफे के साथ BJP के इंतहा पसंदाना बयानिए की तरवीज शुरू कर दी है। मोदी हुकूमत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और मनगढ़ंत एनकाउंटर की आड़ में हलाक होने वाले फौजियों की मौत को सियासी हथियार बना लिया। हाल ही में भारतीय फौज का कैप्टन शबनम गुप्ता राजौरी सेक्टर में एक मुकाबले के दौरान हलाक हुआ, जिसकी लाश आगरा में उसके आबाई घर पहुंचने पर मोदी सरकार के वज़रा ने अजीब ड्रामा रचाया। वज़रा ने कैप्टन शबनम गुप्ता के गमगीन मां को अपनी शोहरत के लिए तस्वीर खिंचवाने पर मजबूर किया, जबकि वो उन्हें अकेला छोड़ देने का मुतालबा करती रही। इसी तरह बालाकोट में हलाक होने वाले भारतीय फौजियों की लाशों को भी मोदी ने अपनी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि ख़वातीन पर तशद्दुद एक आलमी मसला है जो इज्तमाई तवज्जो और काविशों का मुतकासी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए कई इक़दाम किए हैं। सदर ममलकत ने हुकूमती इदारों, सिविल सोसाइटी, मीडिया और उलमाए कराम पर जोर दिया कि वो ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए काम करें। नाज़रीन, ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए 16 रोज़ा आगाही मुहिम का आगाज़। आगाही मुहिम का मकसद तशद्दुद की रोकथाम है। तफसील सदफ अफसल से। ख़वातीन पर तशद्दुद अब भी दुनिया में सबसे ज़्यादा और वसी पैमाने पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में से एक है। आलमी सतह पर एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3 में से 1 खातून अपनी जिंदगी में कम अज कम एक बार किसी न किसी तरह तशद्दुद का निशाना बनती है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन ने एक नेशनल जेंडर डेटा पोर्टल बनाया है UN विमेन की वसातत से। अब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं सूबों से वो डेटा लाने की। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का दिन और 16 रोज़ा आगाही मुहिम का मकसद ख़वातीन होने वाले नफ्सियाती, जिस्मानी और जज्बाती तशद्दुद की रोकथाम और उनके कानूनी हकूक़ के बारे में आगाही पैदा करना है। ख़वातीन पर तशद्दुद तहजीब याफ्ता दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। इसराइली फ़ौज के हाथों फ़लस्तीनी ख़वातीन के साथ तौहीन-आमेज़ सलूक और ख़वातीन को हिरासा किए जाने के वाक़यात बैनुल अक़वामी क़वानीन और आलमी इंसानी हकूक़ की संगीन पामाली है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी होगी। सिनफी तशद्दुद की रोकथाम के लिए 16 रोज़ा आगाही मुहिम मुआशरती रवैयों में तब्दीली का पेश खैमा साबित होगी। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन के क़याम को कल 59 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। PTV एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ और अब अपने 9 चैनल्स के जरिए मुल्क के 90% से ज़ायद इलाके और दुनिया भर में अपनी नशरियात पहुंचा रहा है। PTV का मतमय नज़र कौमी बयानी की तरवीज, मुल्क की सकाफत, यकजहती और हम आहंगी के फ़रोग समेत मुल्क की नजरियाती सरहदों की हिफाजत करना है। अरसलान असद की खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब। 26 नवंबर 1964 को लाहौर के एक छोटे से कमरे से पाकिस्तान टेलीविजन ने अपनी ब्लैक एंड व्हाइट नशरियात का आगाज किया। ख़वातीन और हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज वो दिन है पाकिस्तान टेलीविजन
अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। वक्त गुजरता रहा और पीटीवी एक छोटे से पौधे से तनावर मजबूत दरख्त की सूरत इख्तियार कर गया और अब पीटीवी मुल्क का सबसे बड़ा नशरियाती इदारा बन चुका है। पाकिस्तान टेलीविजन मुल्क का वाहिद टीवी चैनल है जिसकी नशरियात एक सादे से एंटीना के जरिए मुल्क के 90% से ज्यादा इलाके तक पहुंच रही हैं। पीटीवी के 9 मुख्तलिफ चैनल्स की नशरियात मुल्क समेत दुनिया भर में देखी जाती हैं। 1970 से 1990 तक पीटीवी के ड्रामे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे बरसगीर पाक व हिंद में इंतहाई मकबूल रहे, जिनका दूर दूर तक कोई सानी नहीं था। इन ड्रामों में पाकिस्तान के चारों सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत हर इलाके की सकाफत, तहजीब व तमद्दुन, रस्म व रिवाज और माशरती मसाइल उजागर करने समेत सबसे ज्यादा तवज्जो कौमी हम आहंगी पर रही। ये वो वक्त था जब पूरा खानदान और कई जगहों पर पूरे का पूरा मोहल्ला एक टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर पीटीवी ड्रामे समेत अपनी पसंद के दीगर प्रोग्राम देखते और उनका गहरा असर भी लेते थे। इस तरह पूरी कौम एक लड़ी में परोई गई। मलिका नूर जहां के पहले शौहर शेर अफगन का असल नाम क्या था? अली कुली खान। ज़माना अमन के साथ हालत जंग में भी पीटीवी के शोबे न्यूज और हालात हाजरा के प्रोफेशनल्स ने अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के हमरा अगले मोर्चों से ताज़ा तरीन सूरत हाल से कौम को आगाह किए रखा और यूं मुल्क की दिफा और उसकी नजरियाती सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी किरदार अदा किया। मौजूदा हालात में मीडिया कौमों के अरूज और तरक्की में कलीदी किरदार अदा करता दिखाई देता है। जिन मुल्कों में मीडिया जिम्मेदारी के साथ अपनी इस ताकत को मुस्बत अंदाज में मुल्क की तरक्की और माशरती हम आहंगी के लिए इस्तेमाल करता है, वहाँ के माशरों में अपनाइयत और बाहमी रवादारी दिखाई देती है और पीटीवी अपने कयाम से यही फरीजा सर अंजाम देता चला आ रहा है। असलान सदकड़ी खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आगाही और तालीम के फरोग में पाकिस्तान टेलीविजन अपने आगाज से ही अहम किरदार अदा करता चला आ रहा है। इससे नशर होने वाले तालीमी प्रोग्रामों से कई नस्लें मुस्तफीद हो चुकी हैं। रिपोर्ट कर रही है मलिक उमर। आगाही और तालीम का फरोग पाकिस्तान टेलीविजन का हमेशा से मंशूर रहा है। यही वजह है कि चैनल के आगाज से अब तक न सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन से मुतअद्दिद तालीमी और फनी तरबियत के प्रोग्राम्स नशर हो चुके हैं, बल्कि इससे नशर होने वाले तफरीही नौइयत के प्रोग्राम्स में भी इस अम्र का खुसूसी ख्याल रखा गया है कि आगाही को फरोग दिया जाए। डॉक्टर साहब, बहुत मुश्किल सवाल आपने कर लिया। तो ये तो कराची में शायर शुआरा किराम की तादाद बहुत जी। क्या असातिज़ा में तसव्वुर? बिल्कुल असातिज़ा में शुमार 13। यूं तो पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोग्राम से आगाही और शऊर के फरोग को अलग नहीं किया जा सकता, ताहम इससे नशर होने वाले खालिस्तन तालीमी प्रोग्राम्स में बुनियादी तालीम, इखलाकी और मजहबी तालीम, फनी तालीम के मुतनव्वे प्रोग्राम्स, छोटे पैमाने के कारोबारी मंसूबों से मुतल्लिक आगाही के प्रोग्राम्स और हाल ही में कोरोना वबा के दिनों में फासिलाती तालीम के प्रोग्राम्स पाकिस्तान टेलीविजन ही का खासा है। Solution: we have 3y cube equal to 24. मुल्क के सिकाफती और लिसानी तनव्वो की बात हो या इसकी जोग्राफियाई और दिफाई खुसूसियात का मामला, मुल्की और बैनुल अक़वामी सियासत की बदलती हुई सूरत हाल हो या आलमी सतह पर होने वाले अहम वाक़यात, पाकिस्तान टेलीविजन ने हमेशा आवाम को इससे बाखबर रखने की कोशिश की है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, सेहतमंद तफरीह की बात की जाए तो पाकिस्तान टेलीविजन ने खूबसूरत मौसीकी के जरिए आवाम को तफरीह फराहम की। मौसीकी के लिए पीटीवी की खिदमात का अहाता कर रही हैं वर्दा सलीम। कहते हैं मौसीकी रूह की ग़ज़ा है, सुर और लय हर जी शऊर के दिल पर असर रखती है। पाकिस्तान टेलीविजन ने अपने नाजरीन को सेहतमंद तफरीह फराहम करने के लिए मौसीकी के शोबे में गरां कदर खिदमात सर अंजाम दी। मेरी जिंदगी तरह मैं सदाए जिंदगी हूँ, मुझे ढूंढ ले ज़माना। नई आवाजों को मुतारिफ करवाना हो या गुलकारों की हौसला अफजाई, पीटीवी के दरवाजे हमेशा इन सब के लिए खुले रहे। महफिल मौसीकी, महफिल शब, तरन्नम, अंदाज़े बयां, गजल सराय, सुर तस्वीर और इस जैसे कितने ही मौसीकी के प्रोग्राम पीटीवी स्क्रीन पर सुर बखेरते रहे। कल जब देखा मैंने चांद रोके ने, किसको किया सलाम तुम्हारे धोखे ने।
पाकिस्तान टेलीविजन नए गुलकारों की हौसला अफजाई करता है और इस हवाले से सारे सुर हमारे, राग रंग जैसे कई प्रोग्राम इस कौमी नशरियाती इदारे का खासा है। पीटीवी मौसीकी के फरोग की रवायात को आज भी आगे बढ़ा रहा है। विरसा और रात गे जैसे प्रोग्राम आज भी मौसीकी के ऐसे प्रोग्राम हैं जिनका नाजरीन शिद्दत से इंतजार करते हैं। मौसीकी के शोबे में पाकिस्तान टेलीविजन शानदार माजी का हामिल है जो आज भी अपनी रवायात को कायम रखे हुए है। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान टेलीविजन इलाकाई ज़बानों और सकाफत की तरवीज में अहम किरदार अदा कर रहा है। पीटीवी नेशनल मुल्तान और खित्ते की सकाफत और रिवायात उजागर करने के लिए आइंदा चंद रोज में 24 घंटे की नशरियात का आगाज करने जा रहा है। तफसील जानते हैं शराज सुरानी से। 2008 में मुल्तान में पाकिस्तान टेलीविजन मरकज़ के क़याम से ही खित्ता जनूबी पंजाब के अवाम को एंटीना के जरिए 1 घंटा 20 मिनट की मकामी नशरियात दिखाई जा रही हैं। सेंटर से 10 मिनट की खबरें, हालात हाज़रा, ड्रामा, सकाफत, मजहब, अदब, सेहत व तालीम, ज़राअत और सनत व हरफत पर मबनी प्रोग्राम्स सराइकी ज़ुबान में पेश किए जा रहे हैं। तरक्की की रफ्तार से हम आहंगी के लिए पाकिस्तान टेलीविजन ने भी मतलूबा अहदाफ कामयाबी से हासिल करते हुए मुल्तान समेत तमाम मराकज़ को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का काम जारी रखा। सेटेलाइट बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन की कामयाब हिकमत अमली के बाद मुल्तान मरकज से खित्ते की इलाकाई ज़ुबानों में 24 घंटे की नशरियात का आगाज़ होने जा रहा है। पाकिस्तान टेलीविज़न इस मुल्क का सबसे बड़ा नेटवर्क और वाहिद इदारा है जो रियासती पॉलिसी, मुल्की बयानिया के साथ साथ इलाकाई ज़बानों की तरवीज के लिए भी प्रोग्राम पेश कर रहा है। पीटीवी नेशनल मुल्तान के नाम से इंशाल्लाह हम जाएंगे। मालूमात और तफरीह से भरपूर नशरियात अब थल, दामान, चोलिस्तान और कोहे सुलेमान समेत पाकिस्तान और दुनिया भर में केबल नेटवर्क और सेटेलाइट पर देखी जा सकेंगी। जो दानिश्वर, शायर, अदीब, गुलकार पहले लाहौर जाते थे, उनको उनके घर के पास ही उनकी सलाहियतों का इजहार करने का मौका मिल गया है। आर्टिस्टों को मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा लगा। मुल्तान सेंटर ने न सिर्फ इलाकाई बल्कि कौमी जो नौइयत की खबरें थी वो लोगों तक पहुंचाई। पाकिस्तान टेलीविजन मुल्क का वाहिद और सबसे बड़ा नेटवर्क है जो 26 इलाकाई ज़ुबानों में नशरियात पेश कर रहा है। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। पाकिस्तान टेलीविजन ने इलाकाई ज़बानों में नशरियात से न सिर्फ अवामी एहसासात और ज़रूरियात का ख्याल रखा है बल्कि इन ज़बानों की तरवीज में भी अहम किरदार अदा किया है। पेशावर से साजिद अख्तर की रिपोर्ट देखिए। इलाकाई ज़ुबानों में नशरियात पाकिस्तान टेलीविज़न का शुरू से खासा रही है। इब्तिदा में पीटीवी पर इलाकाई ज़ुबानों की नशरियात के लिए महदूद वक्त मुख्तस किया गया था जो उर्दू ना समझने वाले नाजरीन के लिए तस्कीन का जरिया तो था, लेकिन अवाम इससे कुछ ज़्यादा की तलबगार थी। इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इलाकाई ज़ुबानों की नशरियात के लिए पीटीवी नेशनल के नाम से अलग चैनल कायम किया गया। मौजूदा दौर के तकाज़ों और नशरियाती मैदान में मुकाबले की फिजा के पेश नज़र पीटीवी इंतज़ामिया ने खैबर पुख्तनख्वा के अवाम के लिए इनकलाबी कदम उठाते हुए 2.5 घंटे की नशरियात को बढ़ाकर 24 घंटे नशरियात देने वाला मुकम्मल चैनल पीटीवी नेशनल पेशावर लॉन्च किया। इस चैनल के क़याम को खैबर पुख्तनख्वा के अदबी और समाजी हलकों और शोबे से वाबस्ता अफराद बहुत सराह रहे हैं। पहले हमारे नशरियात लोकल सतह पे होती थी और बाहर मुल्कों में जो हमारे भाई बैठे थे जो उनको कोई और ज़बान समझ नहीं आती थी, मजदूरी के लिए, मेहनत के लिए बाहर जाते थे, तो उनको इनकी अशद ज़रूरत थी कि उनकी अपनी ज़बान में उनको नशरियात पहुंचाई जाए। जो प्रोग्राम एज राइटर एज पोइट मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न कॉर्पोरेशन के लिए लिखे थे या बच्चों के प्रोग्राम लिखे थे 15 साल 20 साल पहले, वो 25 साल पहले भी, अब पीटीवी नेशनल इस पे नए प्रोग्राम भी होते हैं, रिपीट रिकास्ट भी होते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। पीटीवी नेशनल एक अहम जरिया था इंफरटेनमेंट का, एंटरटेनमेंट का और ख़ासकर न्यूज़ का, और ये तमाम सूबों के दरमियान एक हम आहंगी का एक ज़रिया था। तो ये तरवीज होती थी इसी चैनल के ज़रिए मुख्तलिफ ज़ुबानों की। पीटीवी नेशनल पर पश्तो के अलावा हिंदको और कहवार में ड्रामे, खबरें, हालात हाजरा और दीनी प्रोग्राम नशर किए जाते हैं। ये जो इलाकाई हमारी नशरियात शुरू हुए हैं तो इससे हमारे जो रीजनल हमारे जो ऑडियंस हैं उनको हम अपनी ज़ुबानों में उनके इश्यूज़ को, उनके कल्चर्स को, उनके ज़िंदगी के दूसरे इश्यूज़ को हम पेश करते हैं। पीटीवी इंतज़ामिया ने ये नशरियात टीवी स्क्रीन के अलावा यूट्यूब और दीगर समाजी मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर नशर करने का भी एहतमाम किया है। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, पेशावर।
लाहौर में बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद और मुल्क भर से जय्यद उलमा कराम ने शिरकत की। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद ताहिर कलासरा। लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निगरान वफाकी वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कहा कि हमें इत्तेहाद और यगानगत से दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाना है और सबको जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। उन्होंने कहा कि जनावाला वाकया दुश्मन की साजिश थी, लेकिन हमारे इत्तेहाद ने दुश्मन को नाकाम बनाया। 16 अगस्त को जड़ावाला का वाकया हो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब तशरीफ ले गए, CM साहब मसाजिद के दरवाजे खोले गए, क्या अच्छा पैगाम गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग बराबर के शहरी हैं। उन्होंने कहा कि पाक फौज मुल्क की सलामती की खातिर मुख्तलिफ महाज पर दुश्मन का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि आदिल राजा और हैदर रजा मेहदी जैसे गद्दार वतन को इबरत का निशान बनाना होगा। जिस मिट्टी ने तुम्हें सब कुछ दिया, जिस वतन ने तुम्हें इज्जत दी, जिस वतन ने तुम्हें रोटी दी, जिस वतन ने तुम्हें पहचान दी, जो उस वतन का गद्दार हो उसे फिर जमीन पे नहीं रहना चाहिए। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद, सूबाई वजीर सैयद असफर नासिर और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि इस्लाम सलामती का दीन है, जिसमें इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फरोग के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस के इनकाद पर जोर दिया। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज, लाहौर। मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात कुरियर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। इस सिलसिले में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में कोप सरबराह इजलास मुनक्किद हो रहा है। इस सरबराह इजलास की पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत है, बता रही हैं मरियम मलिक। कुर्रे अर्ज को मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से बचाने के लिए आलमी मुआहदे के रुकन मुल्कों पर मुश्तमिल कोप आला फैसला साज फोरम है, जहां अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतजाम दुनिया भर के मुल्कों के सरबराह, पॉलिसी साज और माहिरीन सर जोड़कर बैठते हैं ताकि हमारे माहौल को नुकसान पहुंचाने वाले अवामिल का सदेबाप किया जा सके। इस साल कोप 28 सरबराही इजलास की मेजबानी मुत्तहिदा अरब अमारात कर रहा है। 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक दुबई में होने वाली इस आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस में 70,000 मंदुबीन की शिरकत मुतवक्के है। पाकिस्तान का आला सतह वफ्द भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए इसलिए निहायत अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में सरे फहरिस्त है। This particular COP things that matter are energy transitions. If we are to arrest the rising trend of global warming, we must not only as a negotiating position, but even within our own country work towards renewables. Pakistan made NDC commitments under the Paris Agreement, and we moved with the rest of the international community in step with the rest of them. आलमी हिद्दत के बाइस ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने से आने वाले शदीद सैलाब और मानसून की गैर मामूली बारिशों से पाकिस्तान को हर साल 30 अरब डॉलर्स का मौशी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। इस नुकसान के अजाले के लिए गुज़िश्ता साल मिस्र में कोप 27 के दौरान पाकिस्तान की कोशिशों से लॉस एंड डैमेज फंड कायम करने पर इत्तफाक किया गया, जिसके तहत तरक्की याफ्ता ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर तरक्की पजीर और गरीब मुल्कों की माली मदद करेंगे। कोप 28 कॉन्फ्रेंस में पेरिस मुआहदे के अहदाफ का हसूल तवज्जो का मरकज होंगे। मरियम मलिक, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर और पंजाब के दीगर अजला में स्मोक बदस्तूर छाई रही, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। स्मोक की सूरत हाल और उसके तदारुक के लिए किए जाने वाले इक़दामात की तफसील बता रही है शुमाइला शब्बी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर और सूबे के दीगर अजला बदस्तूर स्मोक की लपेट में हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 288, जबकि जेल रोड पर 335 रिकॉर्ड किया गया। रावलपिंडी पर AQI 190, जबकि फैसलाबाद बाईपास रोड शेखुपुरा पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 164 नोट किया गया। स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों के धुएं, ट्रैफिक के दबाव में कमी और गाड़ियों की आमदोरफ्त को कम करने के लिए लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, फैसलाबाद, मुल्तान और सरगोदा डिवीजन में तालीमी इदारे बंद रहे। मार्केटें और बाजार भी 3 बजे तक बंद रहे। ताहम 3 बजे के बाद मार्केटें और रेस्टोरेंट खुलते ही कारोबारी सरगर्मियों का आगाज हो गया। स्मोक के पेश नजर इतवार को तमाम मार्केटें मुकम्मल बंद होंगी। स्मोक का बायस बनने वाले अनासिर सेफ सिटी के निशाने पर हैं, जिनकी निशानदही पर 130 से जायद आलूदगी फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की गई। 95 धुआं छोड़ती गाड़ियों, 16 चिमनियों और भट्टों, जबकि 21 मकामात पर कूड़े को आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। शुमाइला शब्बीर,
पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ लाहौर। कराची के निजी शॉपिंग सेक्टर में अलसुब लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है, ताहम इस वाक़े में 9 अफराद जान की बाजी हार गए। जिशान अहमद खान की रिपोर्ट देखते हैं। आग सुबह 6 बजे राशिद मिन्हास रोड पर वाक़ शॉपिंग सेंटर की आखिरी मंजिल पर लगी, जिसने देखते ही देखते बाकी इमारत की नीचे वाली मंजिल को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला जाए वक़ूअ पर पहुंच गया और आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 फायर टेंडर्स, 2 स्नार्कल और 2 बाउजर्स ने हिस्सा लिया। बिल्डिंग से 26 अफराद को स्नार्कल की मदद से रेस्क्यू करके बाहिफाजत नीचे उतार लिया गया। ताहम इमारत में धुआं भरने की वजह से लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना रहा। जाए वक़ूअ पर पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू टीमें भी मौजूद थीं। हादसे में जाबहक अफराद और जख्मियों को सिविल अस्पताल और जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। सिंध के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने शॉपिंग सेंटर में लगने वाली आग का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची से हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली है। निगरान वज़ीर आला सिंध ने आग की वजह से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया है। निगरान वज़ीर आला सिंध ने सूबे भर में कमर्शियल और सरकारी इमारतों में आग लगने के वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए सूबे भर की कमर्शियल और सरकारी इमारतों की सेफ्टी ऑडिट का फैसला किया है और 30 दिन में रिपोर्ट मुकम्मल करके दी जाने की हिदायत जारी की है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जाए वक़ूअ का दौरा किया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शॉपिंग प्लाजा में इमरजेंसी की सूरत में कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। जिशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद में तफरीह मकाम शाहदरा के इलाके में स्कूल बस खाई में जा गिरी, जिससे एक तालिब इल्म जाँ बहक और 15 से ज़ायद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद पुलिस तर्जुमान के मुताबिक स्कूल बस बच्चों को शेखुपुरा से इस्लामाबाद लाई थी, जिसे शाहदरा के मकाम पर हादसा पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जैतून की बढ़ती काश्त सेहतमंद और हौसला अफजा सरगर्मी है। इस हवाले से इस्लामाबाद में होने वाली नुमाइश का अहवाल माधवान की रिपोर्ट में देखिए। चकवाल के सरसब्ज मैदानों से लेकर वजीरिस्तान के खुश्क पहाड़ों तक अगर कोई दरख्त आपको आज भी देता है तो वो जैतून है। इस्लामाबाद में 3000 साल पुराने इस जैतून की काश्त के फरोग और जमींदारों की तरबियत के लिए 2 रोजा ओलिव गाला F9 पार्क में शुरू हो गया। ख़वातीन ने अपनी फैमिली की हेल्थ का ख्याल रखना है और इसलिए उनको ये ट्रेनिंग देना या बताना ज़्यादा ज़रूरी है। अलावा में हमारे फार्मर्स हैं वो इस पे काम करते हैं। हमने फार्मर्स को प्लांट्स वगैरह लगा के दिए। हमारे पास तकरीबन कोई 500 प्लस फीमेल्स ट्रेन हो चुकी हैं ऑलिव की वैल्यू एडिशन पे। मेले का इफ्तिताह निगरान वफाकी वजीर बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ कौसर अब्दुल्ला मलिक ने किया। उन्होंने स्टॉल्स देखे और जमींदारों से बातचीत की। इस मौके पर पाक ऑलिव ब्रांड का बाकायदा लॉन्च भी किया गया। इस साल वज़ीरिस्तान में जो फसल आ चुका है कम से कम यानी 2 करोड़ के करीब मैंने जो दाना उठाया ना, अगर आप दरख्त लगाए मतलब पानी देने का जरूरत नहीं है क्योंकि उधर बारिश बहुत हो जाता है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह से प्लांट्स भी सब्सिडाइज रेट्स पर जो है वो फार्मर्स को जो है वो दिए जा रहे हैं। उसकी जो वैल्यू चेन है कि कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं तो ये उनको एक्सपोजर अच्छा मिल जाता है। जैतून का तेल, जैतून का अचार और जैतून का मसाला और जैतून की पत्ती, ये चीजें हमारे पास है। लोग काफी आ रहे हैं और बड़ा लोगों का इंटरेस्ट है तो अच्छा चल रहा है। मेले में मुल्क के चारों कोनों से आए फार्मर्स ने अपनी मसनूआत नुमाइश के लिए रखी हैं। जैतून खाना सुन्नत है और इसमें शिफा भी है। इस नुमाइश से ये पैगाम घर घर पहुँच रहा है। माधवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब भर में 25 लाख प्राइवेट कैमरास की मैपिंग प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह किया। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में मुनक़दा इजलास में अजला और तहसीलों में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी भी दी गई। अजला और तहसीलों में डिजिटल निगरानी, ई चालान, ट्रैफिक कंट्रोल और चेहरों की शनाख्त भी की जा सकेगी। इजलास में फैसलाबाद, गुजरावाला, रावलपिंडी सेफ सिटी प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि डॉक्टर्स मसीहा के तौर पर शहीदों की जिंदगियों को महफूज करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लाहौर में कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में मुस्बत तब्दीलियां ला रहे हैं ताकि आवाम को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम हो सकें। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि अस्पतालों में अद्वियात समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पंजाब में जदीद तरीन कैंसर अस्पताल जल्द फाल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी कौम को मईशत के मुतालिक जल्द खुशखबरी मिलेगी। पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बुलीगुर रहमान से लाहौर में दानिश स्कूल सिस्टम के CEO अहमद मलिक ने मुलाकात की। अहमद मलिक ने गवर्नर पंजाब को बताया कि तकरीबन 11,000 मुस्तहिक बच्चों को जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कायम दानिश स्कूल्स में तालीम और रिहाइश की मुफ्त सहूलियात दी जा रही हैं। गवर्नर पंजाब ने दानिश स्कूल के क़याम को सराहते हुए कहा कि इस वक्त के वज़ीर आला का ये एक इनकलाबी इक़दाम है।
انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقوں کے بچے ملک کی اعلیٰ ترین جامعات میں اپنے میرٹ کی بدولت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ کراچی شہر کے لیے جدید خطوط پر انفراسٹرکچر کی فراہمی تاجر برادری کا دیرینہ مطالبہ ہے۔ امید ہے حکومت اس پر تیزی سے کام کرے گی۔ کراچی میں بزنس کمیونٹی کی شائع تقریب سے ان کے خطاب کی تفصیل محمد زبیر الدین سے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ 70% سے زائد ٹیکس اور 55% برآمدات میں حصہ ڈالنے والے شہری قائد کو انفراسٹرکچر کے اعتبار سے مثالی ہونا چاہیے اور اس کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ سب کو مشترکہ کوششیں کرنی ہوں گی۔ انہوں نے بزنس کمیونٹی کے مختلف گروپوں کو ضم ہو کر یک آواز ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اتحادی کے ذریعے تمام مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے، جبکہ تاجروں کے ایک ہو جانے سے ترقی کی رفتار بھی بڑھے گی۔ اس موقع پر تاجر نمائندوں کے سربراہان نے کہا کہ اپنی سطح پر شہر میں صفائی ستھرائی، نکاسی آپ کے مسائل پر کام کر رہے ہیں، تاہم حکومت کا کردار اس میں اہم ہے۔ کراچی کے جو مسائل ہیں انفراسٹرکچر کے، اس کو فوری طور پہ حل کیا جائے تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو۔ بزنس کمیونٹی کو جو بھی مسائل ہیں ہم ان لوگوں کو ایک ساتھ ملا دیں تاکہ ہمارا ملک اس سے ترقی کرے، اور آج جس وقت جس ملک کے اوپر جو پریشانی ہے، اکانومی کا کرائسس ہے اس پورے ریجن کے اندر، پاکستان اس کے اندر شائن کرے، رائز کرے، اور ہم سب کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ تاجر برادری کی ممتاز شخصیات نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انفراسٹرکچر میں بہتری برآمدات کو بڑھانے، محصولات کے جمع کرنے میں اضافے سمیت غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی فروغ کا ذریعہ بنے گی، اور تاجر برادری کراچی کی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ اس موقع پر مختلف سفارتکاروں سمیت تاجر برادری کی ممتاز شخصیات میں ایوارڈز بھی دیے گئے۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے طب کے شعبے سے وابستہ افراد پر زور دیا کہ دکھی انسانیت کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ پشاور میں خیبر کالج آف ڈینٹسٹری کے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا کی ترجیحات تبدیل ہو گئی ہے، آج کا دور جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ گورنر نے تعلیم مکمل کرنے والے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ حفظان صحت کے حوالے سے عوام میں آگاہی پیدا کریں۔ گورنر نے تعلیم مکمل کرنے والے طلبہ و طالبات میں گولڈ میڈلز اور ڈگریاں تقسیم کی۔ وزارت تعلیم اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کے اشتراک سے اسلام آباد میں پاکستان لرننگ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں فہد عزیز۔ بچوں میں تخلیقی صلاحیتوں اور ان میں تنقیدی سوچ کو فروغ دینے کے لیے پاکستان لرننگ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں نے روایتی تعلیم سے ہٹ کر مختلف جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے اپنے جوہر دکھائے۔ تقریب سے خطاب میں نگراں وفاقی وزیر تعلیم مدد علی سندھی نے کہا کہ بچے قوم کا قیمتی سرمایہ اور مستقبل ہیں، ان کو معیاری تعلیم کی فراہمی سمیت جدید خطوط پر تربیت کی فراہمی حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ معیار تعلیم کو درست کرنے کے لیے، اسکولوں کی حالت بہتر کرنے کے لیے اہم اقدامات لے رہے ہیں۔ اسلام آباد سے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی اس قسم کے میلوں کا انعقاد کر سکیں۔ ان قسم کے میلوں سے ہم کتاب پڑھنے کا، سیکھنے کا سلسلہ شروع کر سکیں۔ فیسٹیول میں ورکشاپ، پینل مباحثے اور تخلیقی نمائش جیسے دیگر سرگرمیوں کا بھی انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد بچوں میں تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا تھا۔ فیسٹیول میں اکادمی ادبیات کی جانب سے سٹالز بھی لگائے گئے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ والدین بچوں کی بہترین تربیت کے لیے ابتدائی عمر میں ان کو سیر و تفریح کے مواقع بھی فراہم کریں تاکہ ان کو اپنے آس پاس ماحول سے آگاہی سمیت قدرتی نظارے سے لطف اندوز ہونے کے بھی مواقع مل سکیں۔ فہد عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، مغرب سے بارشوں کا سلسلہ داخل ہونے کے بعد ساحلی پٹی پر گوادر اور مکران کے علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش اور یالہ باری ہوئی۔ طوفانی بارش کی وجہ سے نشیبی علاقے زیر آب، جبکہ پہاڑی علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی کا سامنا ہے۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع ابر آلود رہے گا، تاہم مغربی اور جنوب مغربی بلوچستان اور جنوبی سندھ میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں سموگ اور دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ ناظرین، اب بات کریں گے ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کی، جو کہ کچھ یوں رہی۔
لہ میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اسکردو میں -4، کالام -2، قالات -1، جبکہ گوپس میں بھی -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی: اسلام آباد میں 7، لاہور 11، کراچی 19، پشاور 7، جبکہ کوئٹہ میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید، اور سپورٹس بلیٹن میں بات کرتے ہیں دورہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے لیے قومی ٹیسٹ ٹیم کا راولپنڈی میں ٹریننگ کیمپ تیسرے روز بھی جاری رہا۔ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری تربیتی کیمپ میں کھلاڑیوں کے مابین 2 روزہ سینیریو میچ کھیلا جا رہا ہے۔ میچ کے پہلے دن کھیل کے اختتام پر پاکستانی بیٹرز نے 298 رن سکور کیے۔ شان مسعود 101 اور بابر اعظم 71 رنز بنا کر ریٹائرڈ آؤٹ ہوئے۔ سائم ایوب 35 اور عبداللہ شفیق 3 رنز بنا سکے۔ پہلے روز کھیل کے اختتام پر سعود شکیل 44 اور سرفراز احمد 19 رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں۔ بولرز میں خرم شہزاد اور عامر جمال نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ فاسٹ بولر محمد وسیم جونیئر نے بھی کیمپ کو جوائن کر لیا ہے۔ قومی ٹیم 30 نومبر کو لاہور سے آسٹریلیا کے لیے روانہ ہوگی۔ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کرائسٹ چرچ پہنچ گئی۔ قومی خواتین ٹیم کے 17 رکنی اسکواڈ کی قیادت ندا ڈار کر رہی ہیں۔ ویمن کرکٹرز پیر سے ٹریننگ سیشن کا آغاز کریں گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ویمنز ٹیموں کے درمیان 3 T20 اور 3 ایک روزہ میچز کھیلے جائیں گے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلے 2 T20 میچز ڈونیڈن میں 3 اور 5 دسمبر کو کھیلے جائیں گے۔ سیریز کے تیسرے میچ میں دونوں ٹیمیں 9 دسمبر کو کوئنس ٹاؤن میں آمنے سامنے ہوں گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ ویمنز ٹیموں کے درمیان ون ڈے سیریز کا آغاز 12 دسمبر سے ہوگا۔ ون ڈے سیریز ICC کی ویمنز چیمپئن شپ کا حصہ ہے۔ نیشنل T20 کپ میں ملتان ریجن نے آزاد جموں اینڈ کشمیر ریجن کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ میچ PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا گیا۔ نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے گروپ ڈی کے میچ AJK کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 19.2 اوورز میں 131 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ عثمان معروف نے 31 گیندوں پر 51 رنز کی اننگز کھیلی۔ عاقب لیاقت نے 22 رنز بنائے۔ ملتان کے طاہر حسین 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے میں کامیاب رہے۔ علی ماجد اور سراج الدین نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں ملتان ریجن نے 132 رنز کا ہدف 17.3 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ اوپنر شرجیل خان نے 39 گیندوں پر 53 رن سکور کیے۔ حسیب اللہ خان 46 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ آزاد کشمیر کی جانب ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔